इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की 5 रियासतों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। ये इंतखाबात 10 फरवरी और 7 मार्च के दरमियान होंगे, जबकि 10 मार्च को इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही दिन में रायदही होगी, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 मरहलों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 403 रुकनी असेंबली के लिए 7 मरहलों में चुनाव होंगे। पहले मरहले का आगाज 10 फरवरी को होगा, जबकि माबाकी मरहले 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल की इजराई से कबल माहिरीन सेहत की राय हासिल की गई। तमाम रियासतों में रायदही की मुद्दत में 1 घंटे का इजाफा किया गया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई रोड शो और पदयात्रा नहीं होगी। अलबत्ता साइकिल और बाइक रैली और जुलूसों को 15 जनवरी तक इजाज़त दी गई है। उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमले को फ्रंटलाइन वर्कर तस्वुर किया जाएगा और सारा इंतखाबी अमला वैक्सीनेटेड होगा। सुशील चंद्रा ने बताया कि 5 रियासतों के हर असेंबली हल्के में एक बूथ खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें इंतखाबी अमला भी खवातीन पर मुश्तमिल होगा। कोविड-19 की वबा के चलते 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और जिस्मानी माजूरीन के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमाम 5 रियासतों में जुमला रायदहियों की तादाद 18 करोड़ है। Such polling stations that will be totally manned by women, staff and the women security personnel as well. This will definitely empower the women, will set an example for others. The women can come freely to cast their votes without any hesitation and without any problem. Similarly, some polling stations will be exclusively managed by persons with disabilities. That will also give a sense of confidence to the persons and an inspiration to others. We have made special arrangements for PWDs. Commission is truly committed to ensuring a comfortable polling environment to persons with disabilities. They shall be given priority for entering polling booths, provision made for designated parking spaces close to the entrance of polling stations. Volunteers shall be available to facilitate PWDs. Wheelchairs will be arranged. All polling stations will be having a gentle ramp so that there should be no problem to our persons with the disabilities. We have made arrangement for the postal ballot facility for absentee voters, and 3 types of absentee voters have been identified. That is the senior citizens with the age above 80 plus, the PWDs with the benchmark disability, and those who are COVID affected. A polling team consisting of 2 polling officials along with a videographer and security will then go to electors' house along with the voting compartment and get the electors to vote on the postal ballot. That is just like ECI at the doorstep of the voter. Candidates will be provided a list of such electors along with route chart and a schedule so that they may send their representative accordingly. Therefore, there is absolutely transparency as far as this absentee voter is concerned. We have also given a facility of online nomination to the candidates. This is an optional facility, and we would like the candidates should use this facility so that the physical contact can be reduced and online facility can be fully utilized by the candidates who are coming for contesting the poll. Friends, another important issue is the candidates with the criminal cases. Each and every voter has a right to know the background of the candidate. Among other measures to ensure ethical elections, emphasis is also given on mandatory publicity of criminal antecedents. Candidates. कायदे मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली हल्के कारवान में 25 करोड़ रुपये मालियाती तरक्याती कामों का अफ्ताह किया। अकबर अवैसी का जगह जगह मुकामी आवाम ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और हल्के की तरक्याती कामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कारवान के मजलिस असेंबली कौसर मुहिउद्दीन और कारपोरेटर्स के अलावा सुदूर और मोतमदीन की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। कौसर मुहिउद्दीन ने कहा कि मजलिस ने इस हल्के में कई कामों को मुकम्मल करवाया है और जो काम ज़ेर दौरान है उन्हें भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर हसन अवैसी की क़यादत में अवामी नुमाइंदे तरक्याती कामों के लिए मौसर नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज कारवान के अंदर मजलिस के लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब
हल्के कारवान के तमाम बल्दी डिवीजन के अंदर डेवलपमेंट के रोड्स, वॉक ड्रेन्स और दीगर कामों का इख्तिताम में है, जिसकी लागत 24 करोड़ चिल्लर लागत से जनाब अकबरुद्दीन नबी साहब ने इख्तिताम में है, जो हकीमपेट के अंदर BDC रोड्स, विरासत नगर शातम तालाब का 4 करोड़ की लागत से रिटर्निंग कंपाउंड वाल शातम तालाब का, मिर्जा कॉलोनी बाल रेड्डी नगर के तमाम रोड्स करीब 70 लाख की लागत से, उसी तरीके से नदीम कॉलोनी वॉक ड्रेन और कुलकुंडा रिसाला बाज़ार के अंदर उस्मानिया मस्जिद, महिला घर, देवदासपुरा, इन तमाम कॉलोनीज़ के अंदर करीब 1 करोड़ चिल्लर की लागत से BDC रोड, रेशमबाग का 3 करोड़ का वॉक ड्रेन का काम इख्तिताम में है, और बगदाद कॉलोनी और साथ ही साथ अहमद कॉलोनी, आशफ नगर, सारे नगर कंचा और बल्दी डिवीजन का जो पार्ट आता है एक्सप्रेसपुर, वहाँ पर भी करीब 90 लाख की लागत से BDC रोड और बूढ़ी मलकापुर का जो पार्ट आता है उसके अंदर भी करीब 1 करोड़ चिल्लर की लागत से, इसी तरह से करीब 24 करोड़ की लागत से जनाब अकबरुद्दीन नबी साहब ने इफ्तिताह करे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब के अंदर गोलकुंडे के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसका भी इंशाअल्लाह करीब में इफ्तिताह अमल में आएगा। उसी तरीके से वाटर लाइन्स का भी और कुछ काम बाकी है, उन तमाम इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर उन तमाम कामों का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम नौजवानों से, मेरे बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ, आपके जो बस्तियों के अंदर कोई भी मसाइल रहेंगे, आप मुझको या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या मेरे कारपोरेटर्स को इत्तला करिए। इंशाअल्लाह आपके जो मसाइल रहेंगे जल्द से जल्द पूरी कोशिश की जाएगी। और ऐसा सवाल आने वाले दिनों के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं उस तमाम हालात से आप महफूज रहते हुए, मैं समझता हूँ जो फर्स्ट डोज या सेकंड डोज कई लोग नहीं लिए अभी तक, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ जाकर अपने अपने सेंटर्स के अंदर वो वैक्सीन को लिए। और साथ ही साथ आपके फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आपके जो मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह आप मुझको बताइए, जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश करें। शुक्रिया। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के केसेस में जुमे को जबरदस्त इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस के 2295 केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें जीएमसी हदूद में सामने आने वाले 1712 केसेस भी शामिल हैं। जुमे को 3 अमवात भी हुई हैं। इस तरह पूरी रियासत में कोरोना वायरस के आगाज से अब तक 4351 अफराद फौत हुए। महकमे सेहत ने बताया कि जिले मेडचल मलकाजगिरी में 232 और रंगारेड्डी जिले में 218 केसेस रिपोर्ट हुए। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर, वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़, अरकान असम्बली जीवन रेड्डी और एम जनार्दन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान की तनकीद की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि 4 मरतबा एक रियासत के वजीर आला रहने वाले शिवराज चौहान को इस तरह की बयानबाजी जेब नहीं देती। जमहूरियत की दुहाई देने वाले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ही मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह इख्तिदार हासिल करने में कामयाब हुए। जहाँ तक तरक्की की बात है, तेलंगाना रियासत का मुल्क की कोई भी रियासत मुकाबला नहीं कर सकती। टीआरएस के वज़रा ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की तायद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, इसलिए वो बीजेपी रियासतों के वज़रा आला और मरकजी वज़रा से बयान दिलवा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर साहब आके वो मनमाने बात करके गए। चीफ मिनिस्टर हमारे केसीआर साहब को दम है, वो है बोल के, हमारा दम क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर जाके पूछो। अभी मध्य प्रदेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के इन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने आके यहाँ बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। एक सीएम दूसरे सीएम से ऐसा बात कर सकते क्या? कुछ भी नहीं तो डेवलपमेंट वेलफेयर में कंपटीशन में दिल्ली में लगाओ, डिबेट लगाएंगे, बात करेंगे। यहाँ बिजली कैसा है, पानी कैसा है, फार्मर कैसा है, अनएम्प्लॉयज कैसा है, जो डेवलपमेंट कैसा हो रहा, किस तरीके से हो रहा, वो सब बात करेंगे। बोले तो बात करेंगे। आप तेलंगाना स्टेट को, तेलंगाना आवाम को अभी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, 7.5 साल आ गया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के, एक प्रोजेक्ट दिए क्या बात करेंगे? बोल सकते हैं आप एक प्रोजेक्ट किधर भी दिए? सो परसों पंजाब में क्या हुआ, उन्हें इलेक्शन कैंपेन जाए तो फार्मर्स पूरे रोड पे रोक दिए, वो छोड़ के मैं जिंदा बच गया, ये पॉलिटिकल ड्रामा है पूरा, वो देख लेना। यहाँ के मनमाने बात करके टूरिस्ट के हिसाब में आप कोई भी आओ, बीजेपी वाले मिनिस्टर रहें दो, लद्दा भी आके गए,
आप टूरिस्ट के जैसा आ रहे, टूरिस्ट के जैसा जा रहे हैं, यहाँ के मनमाने बात करके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। अभी यहाँ पर सारे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो तुम्हारा स्टेटा क्या है, डिबेट लगाएंगे बोले तो लगाएंगे। तेलंगाना में हमारे सदारत में हमारे जो बिलाउड चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा, किस तरह पे वेलफेयर हो रहा, किस तरह से लैंड ऑर्डर हो रहा, बात करेंगे बोले तो रेडी है। तुम्हारा दम है क्या, फिर हमारा दम देखते बोले तो दिखाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाएंगे, आपके बीजेपी को भी दिखाएंगे हमारा दम क्या है, देखना चाहे तो। अरे ऐसा बात कर सकते कोई, एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर से ऐसा बात कर सकते क्या? इससे डर रहे, उससे डर रहे। अरे हमारा तो पैदाइशी में डरने का नहीं है। यहाँ तेलंगाना में जैसा पैदाइशी रहता, कोई किसी को डरता नहीं। अभी ये लोग मनमाने कोई भी दिल्ली से आ रहे, अरे क्या आप क्या करना दिल्ली से आके? हमारे हुकूमत ये करी, हम ये कर सकते, एक प्रोजेक्ट ऐसा दिए और देंगे बोल के वो बात करना, यहाँ के मनमाने बात करके। हाँ, यहाँ के लोग अभी बात करते ही वो क्या बोलते हैं, अभी मनमाने एक वो सिंगल आदमी का नाम लेके मनमाने बात करके, ऐसा ठीक नहीं रहता। बीजेपी पार्टी भी याद रख लेना कि आप पब्लिक आवाम के पास जाओ, आवाम के इशू मसले क्या है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने मुलाजिमतों के नाम पर धोखा देने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है, जो कि दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कॉल सेंटर कायम करते हुए चलाया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में 5 खवातीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 26 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और दूसरी चीज़ें जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के नाम राजेश सिंह, अनुभव सिंह, नफीस, शिफाली, योगिता, शानू कुमारी, प्रिया और शिवानी है। हैदराबाद की एक लड़की ने 20 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो एयर होस्टेस की तरबियत हासिल करने के बाद मुलाजिमत की तलाश में सोशल मीडिया पर अपना बायोडाटा अपलोड की थी। उसके बाद उससे राब्ता पैदा करते हुए इन लोगों ने इंडिगो एयरलाइंस में मुलाजमत दिलाने का वादा किया और मुख्तलिफ उन्वानात के तहत 8 लाख रुपए वसूल कर लिए। इंस्पेक्टर बी रमेश की क़यादत में पुलिस ने दिल्ली और जयपुर में धावे करते हुए इस टोली को हिरासत में लिया। क्राइम पुलिस स्टेशन ने दिल्ली में 8 लोगों को एक जॉब फ्रॉड केस में गिरफ्तार किए। 8 में 5 खातिन है और 3 मर्द है। इसमें एक हैदराबाद की एक लड़की जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कंप्लीट की और एक वेबसाइट में अपना पूरे प्रोफाइल और इंफॉर्मेशन उसने दाखिल किए और एक फोन आती है उनको अक्टूबर के महीने में कि उसको एयरलाइन टिकटिंग एजेंट की जॉब, टिकटिंग स्टाफ की जॉब उसको मिलेगी और उसके तहत उनसे पैसा मांगा गया और पूरे 8 लाख इस लड़की ने उन लोगों को भेजे। के बाद में उसको पता चला पूरा फ्रॉड है। इसमें पूरे हमारे टीम जो है रमेश, इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव, एसआई महेश, फिरोज, रघु, गैनी, तेजेश्वर, कांस्टेबल्स पूरे दिल्ली और जयपुर में जाके एक 8 लोगों को गिरफ्तार किए। लोग पूरे एक शॉप को पूरे रेंट में लेके वहाँ एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, पक्का ऑफिस की तरफ सेटअप लगा के वहाँ पे कॉल सेंटर चला रहे हैं लोग। उनको पूरे गिरफ्तार किए। और दूसरी लड़की पेमेंट कैसे बैंक 40 accounts, how is possible that, sir, in this time? It is possible. If you have like 4 different cards, you use different combinations of 4 cards. No, you see 4 cards, 4 into 4, 16 accounts you can open in one bank. 16 into like 5, if you go to 5 banks, you can open 80 accounts. Okay, second case is साउथ जोन आरटीओ ऑफिस बदलागुड़े में स्टाफ के रवैये और खुलेआम रिश्वत की तलबी पर आवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मकामी मजलिस क़ायदीन ने भी कहा कि आरटीओ का स्टाफ ब्रोकर्स के जरिए मनमानी कर रहा है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दूसरे कामों के लिए आने वालों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा किया जा रहा है। ऐसी दरखास्तों और कार्रवाइयों की यकसुई आजिलाना तौर पर की जा रही है,
जो बुजुर्गों के जरिए मुतालिका आरटीओ स्टाफ से रुजू होते हैं। मजलिस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आरटीओ दफ्तर में जारी इस धांधलियों को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। कराची बैकरी के बाद जीएसएमसी के हुक्काम ने शमशाबाद में जी पुल्लारेड्डी स्वीट्स को 25,000 रुपये का जुर्माना किया है। एक कस्टमर ने पुल्लारेड्डी स्वीट्स की मिठाई में बूझ आ जाने की शिकायत की थी। वाज़ेह है कि पुल्लारेड्डी स्वीट्स शहर में मिठाइयों की मशहूर दुकानात में शुमार होती है। ये पार्सल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और उसको छुड़ाने के लिए रकमी इमदाद तलब करते हुए लोगों को धोखा देने वाले बरेली उत्तर प्रदेश के 2 नौजवानों 23 साल मोहम्मद नईम और 22 साल मोहम्मद फरूक को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त 2021 को बेगमपेट के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत की थी कि माह जुलाई में इन दोनों में से एक शख्स ने खुद को डॉक्टर हैरी रॉबर्ट की हैसियत से सोशल मीडिया पर तारुफ कराया और दोस्ती की। बाज़-ए-ज़ां उसने कहा कि वो अमेरिका से लाखों रुपए मालियती गिफ्ट्स लेकर हैदराबाद आ रहा है। फिर बाद में बताया कि उसका सामान एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया है, जिसको छुड़ाने के लिए शिकायत कुनिंदे से 9,42,000 रुपये की रकम मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवा ली गई। बाज़-ए-ज़ां ये गायब हो गए थे और फ़ोन और सोशल मीडिया पर उनका राब्ता टूट गया था। इंस्पेक्टर जी वेंकटराम रेड्डी की क़यादत में पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी अमल में लाई। कैसा इसमें हैदराबाद के एक यहाँ के एक आदमी को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आता कि उनको दोस्ती हो गई उनसे, और उसके बाद वो बोलता है कि उसको थोड़े गिफ्ट ला रहा है यूएस से, और जुलाई 12 को वो आने वाले बोल के उसको बोला। और उसी दिन जब वो लैंड होने वाला था, उसी दिन उसको एक फ़ोन आता कि वो दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम्स और इमिग्रेशन से कॉल कर रहे हैं, अगर ये पूरे माल जो है उसको रिलीज़ करने के लिए उनको पैसे पे करनी होगी। तो पूरे इसमें 9 लाख रुपए इसने दाखिल किए इसमें, और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किए बरेली यूपी से, मोहम्मद नईम और मोहम्मद फारूक, दोनों 23-22 ईयर्स के नौजवान हैं। इसमें एम्बो जो होता है, ये लड़के जो है ये लास्ट लेवल हैंडलर्स है। ये पैसे एटीएम से विड्रॉ करके वो दूसरों लोगों को अपना कमीशन 10% कमीशन लेके और दूसरे को देता, वो फिर 10% उनका कमीशन लेके और दूसरे को, और जो मेन ऑर्गेनाइजर है उनको देता। उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उनको भी जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। इसमें भी वेंकटराम रेड्डी इंस्पेक्टर, मधुसूदन राव एसआई और उनके स्टाफ, और पूरी ये ऑपरेशंस दोनों में हमारे एसीपी साइबर क्राइम साहब का नईम और फारूक के। करीमनगर पुलिस ने सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब पर चलाए जाने वाले गैर कानूनी न्यूज़ चैनलों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए हुजूराबाद में जीएसआर टीवी तेलुगु चैनल के मालिक शिवराम रेड्डी और प्रवीण रेड्डी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 सेलफोन, एक कंप्यूटर और 2 लोगो जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस वी सत्यानारायण ने बताया कि यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर नफरत आमेज मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं चला सकता और न ही अखबार शाये कर सकता है। टीवी चैनलों के ऐसे सहीफे निगारों को जिनके पास हुकूमत के जारी करदा एक्रेडिटेशन कार्ड होंगे और अपने इदारे का लेटर होगा, उससे ही मुसल्लमा सहाफ़ी समझा जाएगा। Even afterwards, ఎవరైనా సరే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దాని పరిధి దాటి, అంటే మనకు అవమానకర రీతిలో రాజ్యాంగ పరంగా చట్టం పరంగా ఏదైతే చేయకూడని పని ఏదైనా చేస్తే చట్టానికి విరుద్ధంగా ఏ పని అయినా చేస్తే వాళ్ళపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకొకరు ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఒకవేళ మీరు ఆ ఛానల్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సుప్రీంకోర్టు అంటే ఆ కన్సర్న్ ఐఎన్పిఆర్ ద్వారా క్లారిఫికేషన్ తీసుకుని సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుని మీరు అక్కడి ద్వారా ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు తెచ్చుకుని మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఎవరండి అట్లా ఏం కదండి, ఇద్దరే చేసాము. ఒక ముగ్గురు విలేకరులు కూడా తీసుకొచ్చాం. వాళ్ళు లగోదిగోం అన్నారు. వాళ్ళు మేము విలేకరులాగా ఉన్నామండి ఇప్పుడు దాకా.
మా తెలీదు ఇది ప్రెస్ అని ప్రెస్ అనుకున్నా, ఇంకా అందరికన్నా మిగతా మెయిన్ ఛానల్స్ కన్నా ఇదే ఎక్కువ వస్తుందని అనుకున్నామని వాళ్ళు. సో అది ఇన్నోసెన్స్ ఉంది దాంట్లో, అందుకనే వాళ్ళని చేయలేదు. వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మిగతా అట్లేం కాదండి, కావాలి మన ఎక్స్ప్రెషన్ ముసుగులో వాళ్ళు ఏదైనా అభిప్రాయాలు తెలియజేసే ముసుగులో విపరీతమైన బూతులు, అబ్యూజివ్ సెక్స్ లాంగ్వేజెస్, అసభ్యకరమైన లైంగిక సంబంధించిన వేదికలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళపై మేము కేసు పెట్టాము. कोरला के टीआरएस रुकन असम्बली के विद्यासागर के मेटपल्ली कैंप ऑफिस में जुमे की रात अचानक आग लग जाने का वाकया पेश आया। रुकन असम्बली की बीवी सरोजा को, जो जख्मी हो गई थी, हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। बताया जाता है कि सरोजा पकवान कर रही थी कि एलपीजी सिलेंडर से गैस का अखराज हो गया और सारा किचन आग की जद में आ गया। विद्यासागर के बेटे संजय ने बताया कि उनकी वालिदा की हालत अब बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताहियों पर जारी तनाज़े और बयानबाजी के दौरान हुकूमत पंजाब ने वरिष्ठ कुमार भारवा को रियासत का नया डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया है। भारवा पंजाब में अहम ओहदों के अलावा मरकज में इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं और उन्हें अच्छा तजुर्बा है। उनकी मियाद तारीख जायजा से 2 साल होगी। इसी दौरान पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर एक बार सिक्योरिटी कोताहियों की तरदीद कर दी और कहा कि उनकी हुकूमत इस मामले की किसी भी जरिए से तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तलबा और स्टाफ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला मकतूब रवाना करते हुए उन पर जोर दिया कि वो मुल्क में नफरत आमेज तकारीर और ज़ात पात की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मकतूब में कहा गया है कि इज़्ज़त माब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी खामोशी से मुल्क को शदीद खतरा लाक है और आपको एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए अपना बयान देना चाहिए। ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के बाद तमिलनाडु हुकूमत ने रियासत में कल इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। तमिलनाडु उन रियासतों में शामिल है जो कोरोना वायरस के केसेस की वजह से शदीद मुतासिर है। रियासत के कई शहरों में पहले ही रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में 1,41,986 केसेस का इजाफा हुआ है। एक दिन में 21% का इजाफा है। मुल्क की 23 रियासतों में जो ओमिक्रॉन से मुतासिर हैं, वहाँ ओमिक्रॉन के मुतासिरीन की तादाद 3,071 हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोविड-19 के 46,000 केसेस सामने आए, जबकि ओमिक्रॉन का यहाँ एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हफ्ता 11वां दिन था जब रियासत में कोविड-19 के केसेस में लगातार इजाफा देखा गया है। एक दिन में 20 अमवात भी हुई हैं। महकमे सेहत ने मुंबई, पुणे और नागपुर एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी है। पुरखतर ममालिक से महाराष्ट्र को अब तक 35,697 मुसाफिरीन पहुंचे हैं और इनमें से 403 ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए। जहां तक ओमिक्रॉन की बात है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां मुतासिरीन की तादाद 513 बताई गई है। वजारत सेहत के मुताबिक कल जुमे से लेकर हफ्ते की सुबह तक कोविड-19 से 285 अमवात हुई हैं।